Hi Simrat, welcome to Kahaniya by Tukwings blog. How are you? I'm very well, Anjali. So thank you for inviting me here. Great, lovely. So, as you know, this podcast is a part of my wedding podcast series, and we'll ask you a lot of questions that all the brides to bees or the grooms to bees are having about their diets because we are just, right ahead of the wedding season. October aa chuka hai, and then November is just right around the corner, right? But before that, at Kahaniya, we have a tradition that, we start the podcast with one story that defines you. Maybe it could be around your journey as a dietitian and anything that you would like to share with a guest. Okay. Hmm. So Anjali, my story is very different in the field of dietetics क्योंकि जब मैंने nutrition and dietetics किया था, it was Hmm. long back. It was 24 years back. Hmm. I did my nutrition and dietetics. उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि dietetics is also a field. Right. आजकल तो every second influencer, third influencer is doing, giving you the diet tips. But at Hmm. that time, जो हमारा, jobs थी, that was only in the hospitals, है ना, with the patients. But at that time, हमें ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, डॉक्टर्स भी हमें रिस्पेक्ट नहीं करते थे. डॉक्टर्स को लगता था अरे डाइट से क्या होएगा, द डाइट इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द मेडिकेशंस, है ना. इफ somebody is sick or something, if somebody is having a problem, they have to take a medication rather than a diet. बट वी Hmm. वर वेरी एडमांड कि नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर हमने पढ़ा है तो बिकॉज डॉक्टर्स में, एमबीबीएस में सिर्फ एक सेमेस्टर होता है न्यूट्रिशन का. दे डोंट रीड मच अबाउट द न्यूट्रिशन, बट वी स्टडी लिटरली फॉर 3 years गुड फॉर द न्यूट्रिशन ओनली. So Hmm. that is a very different thing. But then there was no opportunities for us to work because I was not very comfortable working with the hospital. Then Hmm. after 10 years, I started my own standalone clinic here, Hmm. and I was a pioneer in Punjab. There was nobody, doing this kind of a thing. And Hmm. उस टाइम मुझे अंजलि बहुत डिमोटिवेट किया गया कि यार तुम पंजाबियों को डाइट कैसे कराओगे. जो लोग जो लोग सुबह सुबह की शुरुआत अपनी पूड़ी चने से करते हैं या भटूरे से करते हैं, एंड दे एंड अप विद हैविंग अ बटर चिकन एंड माँ की दाल एंड परांठास. बट यस, देयर वाज अ रेवोल्यूशन. उस Hmm. टाइम, I'm talking about 15 years back, slowly and gradually things started changing, people getting aware of their health. स्टार्टिंग Hmm. में डाइट का मतलब सिर्फ डाइटिंग था, स्टार्टिंग का मतलब सिर्फ वेट लॉस था. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी चेंज दैट सिनेरियो. हम लोगों को हमने अवेयर करना स्टार्ट किया. उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था अंजलि, है ना. यू कैन अंडरस्टैंड, सिर्फ एक फेसबुक होता था. तो Right. हम लोग उस टाइम सिर्फ लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते थे, क्योंकि डाइट का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं होता. डाइट का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं होता. योर फूड इज योर फ्यूल, सो वट एवर यू आर पुटिंग इन, यू आर शोइंग इट आउट. अब Right. चाहे कोई भी चीज हो, है ना. हम अभी आज वेडिंग की बात करने वाले हैं, है ना. चाहे आपकी हेल्थ है, आपकी डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल्स है, आपका यूरिक एसिड है, आपका पीसीओडी है, दीज डेज इट्स अ बिग प्रॉब्लम अगेन, है ना. एनीथिंग that is all related with the food you are eating. Now the Hmm. people have started understanding it. So it is a long story for me, you understand, coming from that kind of a where nothing was there. मतलब किसी के लोगों को ये भी नहीं पता था कि न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कोई चीज भी होती है. एंड नाउ द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट. No, I So I completely. think we have come a long way. I started with only two people when I started my clinic. Now I have a team of 25 girls, women working with me. That's great. Yeah. No, So I was that's, going through your Instagram and I was really impressed by your, content and the work you are doing, I would say. और आपने वो पंजाबी वाला पॉइंट उठाया तो आई वुड मेंशन आई सॉ योर वीडियो आल्सो. वो घर में गेस्ट आने वाले हैं तो यू दे डिडंट वांट देम टू नो दैट कि yeah, उन्होंने डांस किया है तो देन that यू is a real story. We have these kind of stories daily in our office, and we get oh my god, okay, this is a new kind of a challenge you people are having, that ये भी नहीं बताना कि हम डाइट पे हैं. राइट. That was really interesting. So, Yeah. we talk about a lot of these stories as well, but जैसे अब wedding season आ गया है, तो are you getting, clients जिनको अपनी wedding के लिए weight loss करना है, who are like just 2-3 months away from their Yeah. wedding? So Hmm.
हम जो प्री वेडिंग का होता है फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम, वी ऑलवेज प्रेफर कि प्लीज एटलीस्ट गिव अस 5 to 6 months प्रायर, कि कुछ पहले आओ, क्योंकि जब 2-3 महीने रह जाते हैं ना अंजलि, तब तक तो आपकी शॉपिंग्स, आपकी फिटिंग्स, दिस ऑल ऑन द कॉर्नर। सो हम्म वो लास्ट डेज बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप तो मार्केट में ही रह जाते हो हर टाइम। सो हम्म वी प्रेफर कि आप थोड़ी देर पहले आओ। एंड अभी मेरे पास बहुत सारे जैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं। आई हैव अ क्लाइंट हु इज कमिंग नॉट फॉर द वेट लॉस, फॉर द स्किन। बहुत ज्यादा मार्क्स हैं उसके फेस पे, हम्म तो शी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट विद द डाइट, एंड शी नोज कि उसका वो गलत खाना खाती है, इसीलिए होता है डर्मा। फ्रॉम लास्ट 1 year शी वाज टेकिंग अ ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं हो रहा बिकॉज शी वाज नॉट ईटिंग गुड। So now हम्म in last now it's I think 2.5 months she has started with her diet, and अब उसके काफी सारे मार्क्स खत्म हो चुके हैं, एक्ने खत्म हो चुका है, सिर्फ थोड़े थोड़े स्कार्स रह गए हैं which we are working with. हम्म Same, we have many clients who are coming for the weight loss. Then हम जब weight loss लेते हैं ना अंजलि, हमारा सिंपल weight loss नहीं होता प्री वेडिंग के लिए, क्योंकि एंड प्री वेडिंग के लिए weight loss होना भी नहीं चाहिए। weight loss के साथ साथ मेजर कंसर्न है योर स्किन, योर फेस, योर राइट हेयर्स, है ना। राइट जब भी हम ये पैकेज देते हैं, तो हम ओवरऑल उन्हें बताते हैं आपका सिर्फ हम लोग वेट लॉस नहीं करेंगे, वेट शायद कम जाए, लेकिन हम मेजर काम करने वाले हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, एंड सेकेंडली आपके इंटरेस्ट पे। मोस्टली गर्ल्स में होता है ना, दे वांट टू वेयर लहंगास, एंड दे वांट टू हैव दैट फ्लैट टमी। तो वी हम्म work majorly on that part कि okay, well, let's work on that rather than you are just checking the scales all the time. So let's हम्म work on the fat loss. हम्म तो हम लोग हम्म उसके हिसाब से काम करते हैं। एंड जब ये जैसे मैंने अभी बात करी कि हम अगर हमारा फेस खराब है, देन वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द डाइट, like we give a हम्म lot of vegetable juices to them, then we give a lot of detox kind of a water. It's not a detox water, it's kind of a herbal waters which help in glowing the skin, एंड विच हेल्प इन द हेयर फॉल, क्योंकि ये वाला भी जो सीजन निकल के जाता है ना, इसमें हेयर फॉल भी बहुत हो रहा होता है। राइट राइट तो वी हैव टू वर्क ऑन द ओवरऑल वेलबींग कि आप बिल्कुल ठीक होके जाओ। वेट तो है ही है, एंड जिन गर्ल्स के पीरियड्स का इशू होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, शादी के बाद वो भी बहुत स्ट्रेस होने वाला होता है, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, देन वी मेक श्योर कि आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएं। So, हम्म pre-wedding diet package is a combination of each and everything. आप एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, सो यू शुड नो, यू शुड लर्न हाउ टू ईट, यू शुड लर्न हाउ टू बैलेंस योर मील्स। एंड आप सबसे ज्यादा चैलेंज आता है प्री वेडिंग में, जब आपका शॉपिंग शुरू हो जाती है। आप सारा सारा दिन मार्केट में होते हो, स्किन भी खराब हो रही होती है पोल्यूशन के कारण, देन आप मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट कैरी देयर फूड्स, वो लोग बाहर से खाना खा रहे होते हैं या स्किप कर रहे होते हैं 5-5 6-6 घंटे दे डोंट ईट, क्योंकि कई बार टाइम का पता ही नहीं लगता व्हेन यू आर आप स्पेशली सोचो आप वेडिंग का लहंगा लेने गए हो, तो आपको तो याद ही नहीं रहेगा। No, no, I completely get that. मतलब I would share a real story of mine only. Like अभी पीछे 2-3 महीने पहले I was in Delhi for my own wedding shopping. So हाँ same was happening in Chandni Chowk जा रहे हो, then either you are eating outside or you are skipping the meals just because you have to take care of your diet. So that I हाँ, completely agree. and you're not getting a healthy food in the Chandni Chowk also. Absolutely. So other day I was also speaking with another doctor who had a view, जैसे आपने बोला ना कि स्किन का बेसिकली डाइट से कनेक्शन है, सो शी वाज आल्सो टेलिंग मी कि जितना आपका डाइट अच्छा होगा उतना आपका स्किन ग्लो करेगा, हेयर अच्छा होगा, एंड दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर वेडिंग, राइट। एग्जैक्टली, बिकॉज आप जितने मर्जी हेयर स्पास ले लो, स्किन स्पास ले लो, कुछ भी करवा लो, बट अगर अंदर से नरिशमेंट नहीं है आपकी स्किन पे, वो शो ही नहीं करेगा ना। सो एवरीथिंग मैटर्स। राइट राइट। सो जैसे आपने बोला कि 5 to 6 months पहले आना जरूरी है, राइट, डाइट का ध्यान रखने के लिए। बट अगेन इफ समवन हु इज जस्ट 2 months अवे फ्रॉम द वेडिंग और उसको अभी कुछ करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो उनको, मतलब क्रूशियल चीज है जिनका तो डेफिनेटली ध्यान रखना ही चाहिए।
फिर वो उसका वही होता है, बिकॉज अगर आपके टाइम कम रह गया है, देन वी मेजरली फोकस, अगर तो आपका वेट लॉस है, देन वी गिव अ वेरी हेल्दी डाइट्स, है ना, हाई ऑफ प्रोटीन, हाई ऑफ फाइबर, ताकि आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाए, आप एटलीस्ट शेप में आना स्टार्ट हो। एंड सेकेंडली, देन वी कीप ऑन एडिंग मोर ऑफ अ हाइड्रेशन, मोर ऑफ different kind of waters, more of vegetable juices that will हम्म start showing in on your skin, हम्म ना। तो वो सारी चीजें, देन वी विल गेट देयर देयर ब्लड टेस्ट डन। अगर किसी चीज, अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स लो हैं शादी से पहले, क्योंकि शादी वाले दिन आपको फ्रेश भी तो दिखना है ना, आप राइट एनर्जी लेवल तो लो नहीं रख सकते हो। देन वी गेट द द ब्लड टेस्ट डन, क्योंकि बहुत बार होता है स्पेशली इन गर्ल्स, दे आर डेफिशिएंट इन आयरन, हम्म आयरन एंड फेरेटिन। उसके चक्कर में बहुत ज्यादा हेयर्स भी खराब होते हैं, आपका हेयर फॉल भी हो रहा होता है, एंड यू आर फीलिंग टायर्ड ऑल्सो। हम्म सो वी हैव टू गिव द इधर, अगर बहुत ज्यादा कम है, वी हैव टू ऐड द सप्लीमेंटेशन ऑफ इट, एंड अगर नॉर्मल है, देन वी हैव टू ऐड दैट इन योर डाइट, कुछ भी हम्म deficiency है। And if you're deficient in vitamin D or B12, then yes, we have to add a little supplement so that you can cover up हो जाए जब तक शादी आ रही है, ताकि आप हम्म तब तक एनर्जेटिक रहो, आपकी स्किन अच्छी रहे, हेयर्स अच्छे रहे। तो ये हम्म सारी चीजें। देन अगर आपका अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर्स में इशू है, देन यू नीड टू चेक इट आउट कि एग्जैक्ट डेफिशिएंसीज कौन सी है। क्योंकि जब हमारी वेडिंग हो रही होती है ना यार, अगर प्री वेडिंग शूट्स हैं या कुछ भी है, बहुत ज्यादा हेयर पे केमिकल्स लगते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग द ग्लोबल डन, और स्ट्रेटनिंग डन, और समथिंग और द अदर ट्रीटमेंट इज गेटिंग डन। तो उस चीज के लिए अगर आपका अंदर से नरिशमेंट पूरा नहीं है, देन दैट केमिकल्स विल हार्म योर स्किन ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। तो यू तो हैव टू टेक केयर ऑफ द ओवरऑल थिंग्स। तो स्किन का तो आई गेट इट, बट हेयर का कैसे लिंक है मतलब हमारे डाइट से? इफ यू कुड एक्सप्लेन फॉर द ऑडियंसेस। अगर अगर हेयर आपका हेयर ग्रोथ हमारी आयरन, विटामिन डी एंड हमारे प्रोटीन के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। अगर आप, योर हेयर इज मेड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। अगर राइट आपके, इफ यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन, ऑब्वियसली यू आर लूजिंग योर हेयर्स आपका। एंड अगर आपके बॉडी में ओमेगा 3 कम है, द गुड फैट इज लेस, आप अच्छा अच्छा फैट नहीं खा रहे हो, आप ओमेगा 6 फैट ज्यादा खा रहे हो, दैट मीन्स अगर आप फ्राइड बहुत ज्यादा खा रहे हो, बाहर का प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, फिर क्या होता है, आपका ओमेगा 3 कम हो जाता है। आपके वो वाले जब लेवल्स कम होते हैं, तब आप देखो आपके हेयर फ्रीजी हो जाते हैं, उसमें टेक्सचर खराब होना शुरू हो जाता है। देन वी हैव टू गिव इधर दो सप्लीमेंट्स, और a lot of nuts, a lot of seeds in your diet, we have to add those। तो उन सब चीजों को ऐड जब हम करते हैं, स्पेशली फॉर योर हेयर्स, योर फ्लैक्स सीड्स मेक डू द वंडर्स। ऑलवेज प्रेफर स्टार्ट हैविंग द फ्लैक्स सीड्स। लेकिन अगर उससे आपको एक्ने होता है, क्योंकि वो थोड़े गर्म होते हैं, कई लोगों को सीधा सूट नहीं करते हैं, अगर आपको एक्ने होता है, देन यू हैव टू टेक इट इन अ कर्ड, और उसको हाफ कर दो, हाफ अ टी स्पून कर दो, बट दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेयर्स। देन यू कैन ऐड द पंपकिन सीड्स फॉर योर स्लीप पैटर्न, रात को नींद नहीं आती है ना, तो और add those for your magnesium. So these seeds will help you in your skin, hair, sleep pattern, and your mental relaxation. राइट, एंड इन सब चीजों का ध्यान रखना डेफिनेटली जरूरी है, राइट? ऑफ कोर्स राइट बिफोर द वेडिंग एज वेल, राइट? सो अगर आई मीन अगर हम एक कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इज देयर अ पर्टिकुलर डाइट और आर देयर एनी सच डाइट्स जिसको अगर हम फॉलो करें तो वी कैन मतलब सी सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन आवर वेट और ओवरऑल बॉडी, ओवरऑल हेल्थ Before the बिफोर द wedding. Before the wedding. Now you're talking about. Yes. अंजलि, जब हम लोग वेडिंग के पास होते हैं, हमने जो चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली डाइट प्लान, मेक योर प्लान prior a day or a week। जब हम लोग मार्केट्स में निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं खाना, है ना, हमें याद भी नहीं रहता। सो आपको अगर सुबह आपका अपने सुबह का प्लान, अब आप वर्किंग हो, अपना प्लान सुबह करते हो ना, आपने सुबह कौन सी मीटिंग्स अटेंड करनी है, क्या करना है, सेम केस, प्लान योर डे फॉर द फूड ऑल्सो, फॉर द मील्स ऑल्सो। आप सुबह, आपको पता होना चाहिए आपने सुबह उठ के ये ब्रेकफास्ट करना है, अगर आपने मार्केट जाना है तो ऐसा वाला लंच होना चाहिए, एंड दिस शुड बी योर डिनर। देन पैक इट अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप रोटी सब्जी बाहर जाके नहीं खा सकते हो, आपको मुश्किल लगता है इतना ज्यादा एलाबोरेट खाना लेके जाना, देन हैव योर रोटी सब्जी इन द मॉर्निंग एंड टेक अ इजी थिंग इन द लंच। है ना, एक पनीर का सैंडविच पैक कर लिया, आपने पोहा पैक कर लिया,
हम्म आपने वो मिसली आप पैक कर ली, आप इडली खा सकते हो। सो पैक दोज इजी पीजी थिंग्स हम्म तो आप इजीली खा सको, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। किसी अगर किसी मार्केट में किसी शॉप पे भी बैठे हो तो यू कैन जस्ट ओपन योर डब्बा एंड यू जस्ट हैव इट एंड यू आर डन विद इट। कैरी योर बटर मिल्क, कैरी योर कोकोनट वाटर, कैरी योर डिटॉक्स वाटर, जिसमें आप अपना थोड़ा सा पुदीना ऐड करो, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करो, बिकॉज इन दिनों में ब्लोटिंग भी बहुत हो जाती है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस राइट एंड यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, तो देन यू गेट अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग। आप रात को आके देखो, आप बहुत ब्लोट फील कर रहे होते हो, बिकॉज टाइम सारा डिस्टर्ब हो चुका होता है। सो ईट, देन ड्रिंक दैट वाटर, मिंट एंड अजवाइन थोड़ा सा डाल के, चाहे उसमें थोड़े से चिया सीड्स डाल के आप एक बॉटल बना के कैरी इट अलॉन्ग, देन हैव इट इन अ होल डे। अगर आप वर्किंग हो या आप घर पे भी हो, देन have that water in a day. that will help that will help you in your bloating, in your gas or acidity, and obviously hydration तो मिलेगा ही ना, आपका स्किन तो करेगा ही करेगा। और इसी बहाने पानी पिया जाता है मेजरली। राइट आस्क मी क्या इस पानी से वेट लॉस होता है, एंड वैसे वेट लॉस हो ना हो, बट इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन एंड यू विल स्टार्ट ग्लोइंग एंड keeps you full। आपको मेजरली जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती है ना, हर टाइम मीठे की क्रेविंग, या कुछ खा लो कुछ खा लो, चिप्स खा लेते हैं बाहर है तो, सो अगर आप पानी पी रहे हो ना, इफ यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर, यू वोंट क्रेव फॉर द जंक फूड और द स्वीट्स। So water is a solution for all that thing. Right, right. And you mentioned about detox water. So, a kind of detox water you just told us. But are there any other types of detox water that we can include in our diet? Plenty, है ना, a plenty. And when you are waking up in the morning, you can have your a little जीरा Hmm. and or a coriander water, है ना, जो green coriander होता है, you can just mix green coriander and जीरा, you can have that cumin water. Then in the night, because digestion के लिए, because your gut is very important. Right. ना, अगर आपको स्किन अच्छी रखनी है तो आपको गट अच्छा रखना है, तो Hmm. गट ठीक रखने के लिए सौंफ इज वेरी गुड, Hmm. है ना। तो हैव अ सौंफ एंड अजवाइन का पानी, या सौंफ एंड जीरे का पानी, और जस्ट अ सौंफ वाटर, यू कैन Hmm. ऑलवेज हैव दैट। तो Hmm. वो आपको करना क्या है, पहले से प्रिपेयर करके जाओ, जैसे अगर सुबह पीना है तो रात को आपको उसे बना के रख लेना Right. है ना, either boil it or soak it, or you can boil it in the morning, or just boil it in the night, or just have it in the morning. Same with the after dinner waters, just have it in the, या तो सुबह सोख करके चले जाओ या शाम को आके कर लो, whatever way, but do have, इट विल हेल्प यू। उसका उसका रीजन एक्चुअली मैंने कहा ना, जैसे बहुत बड़ा होता है, कई बार क्या होता है, चलो वो हर्ब्स हैं आपकी डाइजेशन को तो अच्छा रखते ही रखते हैं, सेकेंडली जो मेजर चीज है, उसके चक्कर में आप पानी बेटर पी लेते हो, है ना। फॉर द फुल डे यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे आप फ्रूट्स ऐड करके, आप यू कैन ऐड क्यूकम्बर, यू कैन ऐड एप्पल टू इट, यू कैन ऐड लॉट ऑफ कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर टू इट, और यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, कोई भी आपको अच्छा फ्रूट लगता है, आप लेमन स्लाइसेस डाल लो, आप वाटरमेलन डालो, जो भी सीजनल फ्रूट है, पुट अ लिटिल क्वांटिटी इन दैट वाटर, कीप ऑन सिपिंग दैट। तो वो आपका डिटॉक्स वाटर, अल्कलाइन वाटर बन जाता है, जो हेल्प करता है आपकी बॉडी को नॉर्मल रखने में, तो वो Right. एसिडिटी क्रिएट नहीं होती है। Right. So, Abhi, just before the podcast, I was searching for what are the frequently asked questions by bride-to-bees and grooms-to-bees, है ना? So, there were these questions around, even I don't know about those diets, but 3-to-1 diets, what are these diets, and 5:2 diets. So, could you just explain it a little better? Like, do we need to follow these diets, or what are these diets? And कुछ भी नहीं है, वी डोंट नीड टू फॉलो एनी काइंड ऑफ अ फैट डाइट। द रीजन इज बिकॉज वो थोड़ी देर के लिए करते हैं, हम बंद हो जाते हैं। वी ऑलवेज प्रेफर लाइफस्टाइल डाइट्स। अब जैसे ही शादी होगी, शादी होते ही आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है, बीट अ ग्रूम बीट अ ब्राइड, दोनों की लाइफ चेंज होती है, इट्स नॉट कि सिर्फ एक की होती है। ठीक है, ब्राइड की ज्यादा होती है बिकॉज वो आदत होती है अपने घर का तरीके से खाना खाने की, अपने घर में तरीके से उठने की, है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट लाइफ तो दोनों की चेंज होती है। सो Right. डू दैट, फॉलो दैट काइंड ऑफ अ डाइट विच इज सस्टेनेबल। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी डाइट करके, है ना, खाना कम खा के या भूखे रह के या स्टार्व करके, अगर आप शादी से पहले वेट लॉस करते हो, बहुत सारे ये लोग गलती करते हैं, जैसे ही शादी होती है ना, जस्ट बाउंस बैक लाइक एनीथिंग,
क्योंकि शादी पहले तो शादी में ही खाना बहुत सारा होता है, फिर जैसे शादी हम इंडिया में रहते हैं, हमारे तो डिनर्स ही बहुत होते हैं, right. you know. You people are being invited to some person or to the other person, आप किसी ना किसी के घर जा रहे हो, और यहाँ पे तो हमारे तो जब तक फोर्सफुली खिलाया ना जाए तो समझो आप तो अच्छे होस्ट ही नहीं हो, so these things happen and you bounce back. हमारी ब्राइड्स मेजरली महीने डेढ़ में ही हमें हमें कंप्लेंट आती है कि वो बाउंस करती हैं अगर वो क्रैश डाइट करके करें, बहुत सारे लोगों। बट अगर आप बहुत इजी धीरे 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 करके वेट लॉस किया ना आपने, एंड आपने बहुत अच्छे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग किया, आप बाउंस नहीं करते हो इतना, एटलीस्ट 10 kgs तो नहीं करोगे, करेगा होएगा भी तो 1 या 2 किलो हो जाएगा, एंड दैट इज मैनेजेबल। और फिर आपको Right. बाहर घूमने जाना होता है, पीपल गो फॉर द आउटिंग्स, देन ऑब्वियसली यू और हम ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे ग्लोबली है, व्हेन यू आर गोइंग आउट मींस ईटिंग आउट, Right. Right. तो बाहर बहुत खाना हो जाता है, सो वो सब कुछ ही आपके फेस पे भी आता है, आपके हेयर्स पे भी आता है, आपके वेट पे भी आता है। एंड अभी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है अंजलि, हमारे पास बहुत सारी पोस्ट वेडिंग इस टाइम लोग आ रहे हैं, जिनकी पिछले साल शादी हुई थी, they are getting be it boy or a girl, they are getting lot of hormonal issues Hmm. after wedding. Hmm. The reason is not that you got married or you are just had a आपका आप शादी हो गई है तो इसलिए आपको हार्मोन का इशू आएगा, नो, इट्स बिकॉज दे आर ईटिंग अ लॉट एंड दे आर ईटिंग Hmm. लॉट आउटसाइड, और जैसे ही लाइफस्टाइल चेंज होता है योर हार्मोन्स गेट हेवायर। Right. तो अभी हमारे पास बहुत सारे चूड़ा पहनने वाली लड़कियां आती हैं जिनके पीरियड्स मिस हो रहे हैं और वो अच्छी चीज के लिए मिस नहीं हो रहे हैं, जस्ट आ नहीं रहे। So what would you suggest to them? I think ये बहुत important point है जो आपने mention करा कि post wedding diets भी important है या basically lifestyle यस, diet are like देखिए really important. अंजलि, जब हम लोग देखो पोस्ट वेडिंग हम वी अंडरस्टैंड, हम लोगों के जब किसी की हमारे प्री वेडिंग की शादी होती है, हम उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, एंजॉय योर टाइम है ना, टेक अ मंथ मंथ ब्रेक, है ना, पर स्मार्ट ईटिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बाहर भी जा रहे हो वो क्वांटिटी कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप एकदम शादी के बाद एकदम आप बहुत ज्यादा किसी को मना नहीं कर सकते, एकदम लाइफस्टाइल पे वापस नहीं आ सकते, स्पेशली इफ यू आर ऑन अ जॉइंट फैमिली, एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड द फैमिली अराउंड। लेकिन आप स्मार्ट ईटिंग करोगे, आप ओवर ईट नहीं करोगे, आप बहुत ज्यादा खराब खाना नहीं खाओगे, और जैसे ही 1 से 2 महीने होते हैं देन वी सेड गेट बैक टू योर नॉर्मल शेड्यूल नाउ। तो आप अपना नॉर्मल खाना खाना शुरू कर दो जैसे आप शादी से पहले खाते थे। लेकिन अगर इस घर में कई बार होता है स्पेशली फॉर द ब्राइड्स, है ना, आपके नए वाले घर में आपके बहुत सारा अलग तरह का सिस्टम है। अगर वहां पे आपके पेरेंटल हाउस में दे आर हैविंग द फूड एट 7 or 8, बट नाउ द फूड इज हैविंग एट 9, 10, 11 इन द नाइट, दैट इज नॉट राइट। व्हाई यू आर Right. हैविंग लेट, इधर यू आर गोइंग आउट और द एक्सक्यूज इज कि मेरे हस्बैंड लेट आ रहे हैं। सो you always tell them okay it's okay, अब 2 महीने हो गए हस्बैंड की सेवा, प्लीज अब वापस अपना खाना टाइम पे खा लो, हस्बैंड का वेट नहीं बढ़ा, आपका बढ़ गया। एंड Right. अच्छा मेजरली हस्बैंड्स का भी बढ़ जाता है, रीजन इज ईटिंग आउट अगेन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बॉयज जिम कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनका जो ब्रेक आता है वो 1-2 महीने का आता है, बट दे अगेन ज्वाइन। बट गर्ल्स का थोड़ा सा लंबा हो जाता है, दे डोंट गो बैक टू देयर ओरिजिनल रूटीन्स, दे No, टेक I टाइम उन्हें, agree with क्योंकि एक बार नए घर में भी एडजस्ट होना है, सब कुछ देखना होता है। सो वी ऑलवेज टेल देम कि ओके स्मार्ट ईटिंग कर लो, you. नहीं है आपको आपको हर टाइम ये सोचना है कि आपको क्या बनाना है, जो बन रहा है उसको स्मार्टली ईट करो। पराठा बन रहे हैं, डोंट ईट 2 parathas, हैव 1 paratha and have protein along with it so you can feel full. So that way we always tell our clients कि आपको उसके हिसाब से मैनेज करना बहुत जरूरी है। It will take time to make a schedule, but it is very important to get back. अदरवाइज तो आपका कब शादी के बाद जो आपने शायद 10 किलो लूज किया था शादी से पहले, और कब 15-20 वापस ले आओगे, और वो लहंगा कभी पूरा नहीं आएगा। नो, मैंने डेफिनेटली अपने आसपास ऐसे ब्राइड्स बहुत देखे हैं, एंड आई एम लाइक रियली एंग्शियस अबाउट दैट फैक्ट आल्सो।
That's why I'm telling you the reasons why we gain weight after the wedding. Mhm. Majorly people gain weight. It's not the, the girls only, the boys also. But Mhm. Right. So, you spoke about the boys also. So let's get to that point. Is it, is it the same for the brides and the grooms if we talk about the diet or the lifestyle change or? देखो, इट डिपेंड्स अंजलि टोटली ऑन द टेंडेंसी, है ना? Mm-hmm. अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, बॉयज की भी बहुत सारे बॉयज की टेंडेंसी होती है वेट गेन करने की। इफ यू हैव द टेंडेंसी टू गेन वेट और आपने अगर शादी से पहले वेट लॉस किया है, देन आपका ऑब्वियसली, अगर आप बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हो एंड आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं, यू विल बाउंस बैक। Mm-hmm. बट गर्ल्स, लेडीज का मेटाबॉलिज्म बॉयज से थोड़ा स्लो होता है, का बाउंस बैक जल्दी होता है और जल्दी नजर आना शुरू हो जाता Mm-hmm. है ना? क्योंकि हमारा क्या है, हमारे कपड़ों से जल्दी पता लगने लग जाता है, क्योंकि वो कपड़े टाइट, ये भी नहीं आ रहा, ये भी फिट नहीं हो रहा। सो आउटफिट्स आपको बहुत जल्दी आपको रियलाइज करवा देते हैं दैट यू हैव गेन्ड वेट। अगर आपने नहीं भी चेक किया, देन ऑल्सो यू गेट टू नो। बॉयज में क्या होता है, वो छूट जाते हैं इन चीजों से, उनको इतना जल्दी पता नहीं लगता दैट दे आर गेनिंग, बट एंड दे गेन स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल्सो, बट दे डू, Right. एंड दे गेन ऑन द बेली, है ना? उनका बेली फैट हो जाता है, Mm-hmm. उनका बेली बाहर आ जाता है, एंड वो होता ही होता है। Right. Right. एंड द सेम थिंग, ठीक है, उनके हॉर्मोन्स, हमारे जैसे लेडीज में क्या होता है, पीरियड्स मिस हो गए, आपको एक्ने आ गया फेस पे, आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, आपका फेशियल हेयर्स आने शुरू हो गए, मूड स्विंग्स होने शुरू हो गए, उससे आपको पता लगा था ओ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया। बट बॉयज में ऐसा नहीं है, दे डोंट हैव अ वेरी विजिबल हॉर्मोन्स, Mm-hmm. चेंजेस तो आते हैं। Mm-hmm. इसीलिए इसीलिए आजकल इनफर्टिलिटी इतनी ज्यादा है, Mm-hmm. just because our food is bad. Right. So Right. these things, yes, you have to take care. आई कम्प्लीटली अग्री विद दैट पॉइंट। जैसे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी मतलब क्रॉस करा है अबाउट द वेट गेन बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस बिकॉज ऑफ आवर डाइट्स ओनली, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज आवर लाइफस्टाइल चेंज बिकॉज ऑफ द वेडिंग एंड। या वेडिंग, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि शादी के बाद कुछ हो जाता है, लेकिन शादी के बाद कुछ नहीं हुआ। आप सिर्फ ये हुआ कि आपने खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, एंड गलत टाइम पे खाना शुरू कर दिया, और बहुत गलत खाना शुरू कर दिया, एंड होता है बिकॉज आफ्टर वेडिंग अगर किसी ने नहीं भी इनवाइट किया ना, यू जस्ट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, यू स्टार्ट गोइंग आउट मोर, क्योंकि वही लगता है कि ठीक है, वही हैप्पीनेस है, तो लेट्स गो आउट, लेट्स हैंग आउट, तो वो उस चक्कर में यहाँ पे गड़बड़ होती है। राइट राइट। सो आपने एक और पॉइंट भी मेंशन किया था अबाउट द दिस कंपैरिजन ऑफ द अर्ली डिनर एंड द लेट डिनर्स, राइट? तो अगर बाय चांस हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है आफ्टर वेडिंग एंड वी आर हैविंग लेट डिनर, तो हम क्या क्या चीजें हैं अपनी डाइट में जो इंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए फॉर तो दैट लेट? बड़ा सिंपल सा काम है, अगर आपके घर में लेट डिनर्स का ट्रेंड है या आपका कोई रीजन है, एक्सक्यूज है लेट डिनर्स का, देन डू वन थिंग, क्योंकि आप एज अ वुमेन आपको तो शाम को भूख लगी जाती है ना, आपका बॉडी क्लॉक अगर बनी हुई है पेरेंटल हाउस की 7-8 बजे भूख लगने की, तो वो नेचुरली होएगा ही होएगा। देन व्हाट यू हैव टू डू इज हैव सम थिंग एट दैट टाइम, जो आपने थोड़े बहुत आपके घर में खाना बनाए, थोड़े बहुत कार्ब्स बने हैं, उस टाइम खा लो, और जो रात का टाइम है, आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने इन लॉज के साथ ईट समथिंग लाइटर, जैसे सिंपल उस टाइम सब्जी खा ली, उस टाइम सिर्फ दाल खा ली, उस टाइम सिर्फ सैलेड्स खा लिए, तो इतना को करो, फिर धीरे धीरे करके उसको ऊपर लेके आओ, है ना? क्योंकि एज अ इफ यू आर एन अर्ली ईटर एंड आपको आदत है पहले शुरू से जल्दी खाने की, एंड उसके बाद आपके पास टाइम भी नहीं है, एंड यू हैव द वेट इश्यूज और द हार्मोनल इश्यूज, देन यू शुड हैव द राइट टू ईट अर्ली। एंड आई टेल माई ऑल द वुमेन क्लाइंट्स कि प्लीज हस्बैंड की वेट मत किया करो। रीजन इज, वो पुराना जमाना नहीं है कि आप उन्हें खिला खाओगे। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, राइट आपका लाइफस्टाइल अलग है, वो तो नहीं आपको आपके साथ सुबह 6 बजे उठ रहे,
right. उठते हैं ना, आपने घर का काम अगर करना है, इफ यू आर होम मेकर, इफ यू आर गेटिंग अप 6 in the morning, या आपकी मदर इन लॉ इज अ होम मेकर, दे आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे आर सेंडिंग द किड्स टू द स्कूल। बहुत ज्यादा हस्बैंड्स तो नहीं उठते हैं सुबह सुबह 6 बजे टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, इट्स ओके, दीज डेज इट्स एन इक्वालिटी थिंग, इट्स ओके, हैव योर अर्ली डिनर्स, हैव योर, आप अगर आपको बहुत प्यार बढ़ाना है ना, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा Well, that's the best time to spend with each other rather than having the dinner times. तो हफ्ते में एक आधी बारी इकट्ठे डिनर लेट कर सकते हैं, बट अगर हम रोज करेंगे देन वी विल स्टार्ट गेनिंग वेट। बट बिकॉज योर हस्बैंड हैज दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो शुरू से ही रात को 10-11 बजे कर रहे हैं। Right, right. Right. एंड So एंड ये एंड yeah. ऑब्वियसली उसके बाद आप सोने ही वाले हो ना, आप या तो नेटफ्लिक्स देखने वाले हो या सोने वाले Mhm. हो, नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स। Right, right. So ये तो हमने करी डाइट की बात. So if we have to include some sort of home workouts in our routine, pre or post wedding, then what would you suggest? अगर आप जिम जाने का टाइम नहीं है, इफ यू डोंट, आपका मिस हो रहा है, अदरवाइज आई प्रेफर, ठीक है, थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग करो, इट्स अ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बट इफ यू डोंट हैव अ टाइम, अगर कुछ ऐसा नहीं है, प्लीज स्टार्ट वॉकिंग एटलीस्ट। Right. शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, ये तो ऐसी चीज है जो आपके हाथ में है, Hmm. ठीक है। एंड सेकेंडली, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर, स्पेशली Right. आफ्टर वेडिंग, यू कैन ऑलवेज गो अप फॉर अ वॉक टुगेदर, Hmm. ठीक है। नहीं है, अगर जिम ज्वाइन कर रहे हो आफ्टर वेडिंग, दैट्स द बेस्ट पार्ट, अगर आप दोनों मिलके करते हो। थर्ड, अगर ये भी नहीं होता, देन अगर बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि बाहर जगह नहीं है वॉक करने की, Hmm. वी डोंट हैव द पार्क्स अराउंड और वट एवर द रीजन इज, और इट्स नॉट सेफ फॉर द Hmm. लेडीज to go out, then please start with the home workouts. These days so many online classes are there. Hmm. For any good online home workouts, take any 1 hour for the day and do it. Hmm. अपने रूम में तो हम कर ही सकते हैं ना कभी भी, और Right. थोड़ा बहुत भी होम वर्कआउट, हमारे स्ट्रेचेस, हमारा जुम्बा, Hmm. दैट रियली हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म, Hmm. ठीक है ना। तो Right. उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग एक्टिव। Hmm. स्पेशली इफ यू आर होम मेकर, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हो तो आप सारा दिन लथार्जिक, सारा दिन घर बैठे रहोगे, एंड आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है प्री वेडिंग। Hmm. तो पोस्ट वेडिंग एकदम अगर सब कुछ रुक जाता है, तो इट्स बेटर टू डू समथिंग, एंड इफ यू आर वर्किंग, देन टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, सो दैट you don't feel exhausted. राइट, राइट. एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेंटल हेल्थ, इफ यू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ, तो प्री वेडिंग भी और पोस्ट वेडिंग भी हो सकती है, एंजाइटीज होती हैं. तो फॉर दोज एंजाइटीज, आर देयर एनी फूड्स दैट वी शुड इंक्लूड इन आवर डाइट और अवॉइड? अंजलि, बहुत बारी अगर आपने देखा होगा, अगर आप भूखे हो तो हम हैंग्री हो जाते हैं, हम्म. हमें बिना बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हमें यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन ऑल्सो। सो पहली बात तो भूखे नहीं रहना, दैट इज हम्म. वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन ले रहे हो, है ना, हम्म. बीट योर टी और कॉफी, है ना, सो वो एंजाइटी बढ़ाती है, राइट. ठीक है। उस टाइम तो हमें लगता है हम थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, बट क्योंकि उससे हमारे हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट। हम्म. लेकिन क्योंकि देखो, ये तो रहेगा, शादी से पहले एक तरह की एंजाइटी रहती है, एक होता है कि बस थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहा कि ओके, बिकॉज यू हैव टू गेट मैरिड, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर आफ्टर दिस, सो दिस इज अ नॉर्मल पार्ट, एंड ओके, आप थोड़ा बहुत भी परेशान नहीं हो तो फिर शादी कैसी है ना, जब तक, फिर तब तक तो आप काम ही नहीं करोगे खुद पे। सेकेंड इज योर आफ्टर वेडिंग, बिकॉज you have to, be it a boy or a girl, you have to adjust to all the surroundings for the राइट. new, kind of a new life you have to adjust, so that is also there. But again, जो women के लिए प्रॉब्लम आती है, बिकॉज पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, शायद वो अपने घर में 12 बजे उठ रही होगी, अब यहाँ पे यू हैव टू गेट अप समटाइम्स, अगर अगर स्पेशली जॉइंट फैमिली है, देन यू हैव टू गेट अप बाय अर्ली। अब वो जिस घर का जो जैसा सिस्टम है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, देन वो भी बहुत सारे लोगों को एंजाइटी देता है। राइट. सो वी ऑलवेज टेल आवर क्लाइंट्स, सो जस्ट बी काम, पहले तो जाके उस घर का माहौल समझो, देन चेक आउट कि आपको कैसे अपने आप को उसमें सेट करना है।
हम्म घर में अगर आपको 11 बजे उठते थे आप, क्योंकि शादी से पहले ना लड़कियां बहुत वो हो जाती हैं, बहुत इजी मोड में चल जाती है कि पता ही है, और पेरेंट्स भी बहुत इजी मोड में चल जाते हैं कि यार थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, है ना। हाँ सो मोस्टली लोग लेट उठना शुरू हो जाते हैं कि आराम कर लेते हैं, एंड इफ यू आर डूइंग अ जॉब तो आप ब्रेक ले लेते हो थोड़ी देर के लिए कि चलो थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन हो जाते हैं। सो ये थोड़ी सी चेंजेस ऑलरेडी आई होती हैं, तो एकदम हम्म शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। हम्म है ना। लेकिन अगर आप 11 बजे उठ रहे होते हैं ना, तो आपकी एक आदत भी होती है, अच्छा 11 बजे उठे, 12-1 बजे ब्रंच किया, है ना, देन गो फॉर योर शॉपिंग और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब जब इस घर में आते हैं तो थोड़ा सा अब एक आदत तो वही है कि हमने लेट ब्रेकफास्ट करना है। सो इफ इट इज देयर ना, सो ऑलवेज प्रेफर रादर देन गेटिंग योर एनर्जी डाउन, प्लीज ईट समथिंग इन द मॉर्निंग। पहले सुबह उठते ही आदत डालो कि यहाँ पे उठ के अपने नट्स भिगोने शुरू करो, अगर वहां उस घर में नहीं है रूटीन किसी की, देन यू डू इट। उससे क्या होगा, सबके घर की रूटीन बननी शुरू हो जाएगी। देन अगर आपको पता है ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है, हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क और हैव अ वन फ्रूट, वट एवर यू लाइक टू हैव, है ना, और अ कोकोनट वाटर, वट एवर इज योर चॉइस, हैव इट बिफोर योर ब्रेकफास्ट rather than being empty stomach from 6 to 11। तो कुछ खाया होगा, आपका दिमाग भी सही रहता है और आप सेटल डाउन इजीली हो जाते हो। These नहीं are तो, very या crucial नहीं तो things, I would धीरे say. धीरे करके अपना ब्रेकफास्ट टाइम फिर ऊपर लेके आओगे आप। विल स्टार्ट विल join the work again, है ना। Right. So initially ना आपने mention किया था about the belly fat thing and I forgot to ask at that moment. But belly fat अगर हमें कुछ महीने ही रह गए शादी होने में, तो how do we work on our belly fat as women? कैलोरी डेफिसिट, आप ओवर ईट नहीं कर सकते किसी भी टाइम पे। आपको समझना पड़ेगा कि आप, अगर आपको 2 रोटी की भूख है, प्लीज एक खा लो, lot of green veggies along with it और a protein along with it। एंड अगर आपको वो भी ऐसा नहीं है कि आपको ओवर ईट करना है या पेट भर लेना है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एंड आफ्टर 2 आवर्स इफ यू आर फीलिंग हंग्री अगेन, हैव इट, फिर कुछ और खा लो। थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाओ, टेक अ स्मॉल मील्स फॉर द बेली फैट, क्योंकि फैट बर्निंग वहां पे स्टार्ट होती है। अगर आप 5-5, 6-6 घंटे नहीं खाओगे, ऑब्वियसली यू विल स्टार्व एट दैट टाइम एंड यू विल एंड अप ईटिंग मोर। तो इससे बेटर होता है थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहो, ताकि आपको भूख भी नहीं लगे और आपका फैट बर्निंग भी चलती रहे। तो उससे आपको बेली फैट बड़ी जल्दी रिड्यूस होता है। Which also brings me to intermittent fasting. तो वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? What are your thoughts? दैट इज टोटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कई लोगों को वो बहुत अच्छे से सूट करता है, कई लोगों को बट ज्यादा हेडेक्स या लो फीलिंग एंड गिव यू अ लॉट ऑफ एंजाइटी इन दैट, बट पीपल आर वेरी कंफर्टेबल इट। Just otherwise, it's a good practice. But if you try, you have to try it for few days. If you're comfortable with it, go ahead. And if not, then don't do it. And secondly, if you're doing intermittent fasting, it doesn't matter. It doesn't mean कि आप बीच में कुछ भी खा सकते हो अपनी eating window में. That has to be a healthy stuff only. खाना proper 2 टाइम का आप खाना खाओगे, थर्ड टाइम पे आप proper fruits खाओगे. Keep yourself hydrated. Right. So finally, if we talk about our closing thoughts about, the entire pre-wedding diet or the lifestyle, what would be that? And then we'll definitely come to the post-wedding lifestyle as well. Okay. So, Anjali, especially for the pre-wedding, I always say, अगर तो आपकी last moment पे wedding, arrange हुई है, then okay, we don't have any choice. But if you know आपके 6-7 महीने हैं, then start working on it. है ना, start the moment you got it fixed, start working on it, on your health, on your body, on your hair, on your skin, everything on a time, so that you can get that kind of a perfect body which you want at the wedding time. And please don't stress out. The reason is, I told you, little stress is good, but if you stress out more, be it for your your outfits or your pre-wedding shoots or about your future, then acne भी आएगा, आपकी बॉडी लो फील भी करेगी, एंड मेंटल स्ट्रेस के कारण आपका हेयर फॉल भी होगा. So if you want to stay physically fit, you have to stay mentally fit too. Right. So it's an overall thing, and to correct your eating habits, otherwise बहुत सारी problems आती हैं बाद में. Absolutely. Yeah.
And शादी से पहले एक तो बहुत कुछ चल रहा होता है, as you rightly mentioned also, like shopping and stuff, and then of course like November में अगर किसी की शादी है, there are festivals as well. So one important thing I think I forgot to ask was about the sugar intake. I mean, because the festivals also there is a lot of sugar intake. So how do we control that? Yeah, look, if you want to uh, stay young, if you want to Hmm. look young on your wedding, Hmm. stay away from the sugar. Hmm. Hmm. थोड़ा थोड़ा खा लो, because more of the sugar it cause acne also. Hmm. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खाओगे तो कोई कुछ नुकसान नहीं है, बट हैव लिटिल बाइट्स। अब अगर फेस्टिवल सीजन है, अब घर में बहुत सारी मिठाई आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी खानी है, रोज थोड़ी थोड़ी करके आप ही ने खत्म करनी है। हैव अ लिटिल बाइट जस्ट फॉर द टेस्ट, फॉर द सेक ऑफ द टेस्ट। अभी पेट भरने के लिए नहीं खाना, मतलब सिंपल। Hmm. Hmm. एंड जब Hmm. भी खाना है कोशिश करो खाने के साथ मत खाओ, हैव इट इन द मिड टाइम्स, है ना, 12-1 बजे खा लिया, 6-7 बजे खा लिया, सो दैट वो एब्जॉर्ब हो जाए इजीली बॉडी में। Hmm. And I would say follow your Instagram page, which has a lot of, homemade sweets as well. I was Yes. really impressed with that. Right. So, if we talk about the final thoughts for the post-wedding lifestyle, what would be that? So after the wedding, your life is totally different. You Hmm. know, lifestyle, be it a boy or a girl, so life is totally different for both of them. So uh, I always say, कि slowly and gradually come back to your normal lifestyle, or Hmm. make that kind of a lifestyle which you can easily sustain throughout the life. Hmm. Hmm. क्योंकि हमें पता है, अगर आपका इफ यू आर बॉय एंड यू हैव अ रूटीन ऑफ कमिंग अप लेट फ्रॉम द ऑफिस, है ना, आप 7-8 बजे आ रहे हो, एंड इफ यू आर वुमेन ऑल्सो, अगर आपका वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि आप बहुत लेट आते हो, Hmm. बट मेक इट श्योर कि आप एक शाम को स्नैक्स जरूर ले लो, Hmm. Hmm. सो दैट यू वोंट बी सुपर हंग्री एट नाइट। Hmm. Hmm. क्योंकि जब आप आफ्टर वेडिंग, क्या होता है, आप दोनों काम से आए या अगर कोई घर पे है, तो जब लेट आते हैं ना, एंड इफ यू आर वेरी हंग्री ना, फिर घर पे अच्छा बना हुआ खाना भी अच्छा नहीं लगता, देन यू फील लाइक चलो चलो बाहर चल के खाते हैं, है ना। तो दैट इज वेरी नेचुरल। तो सबसे बड़ी गट, और सारे कपल्स हमें आके यही बोलते हैं, अरे सारा दिन तो अच्छा खाया जाता है, रात को ही कुछ प्रॉब्लम आती है। I know. Yeah. Right. So the major problem is when we know it is a nighttime problem, then we have to work on it. Hmm. Secondly, please join anything, any exercise, any walk, any gym, any home workout, so that you feel motivated towards your Hmm. health also, towards your diet also. क्योंकि थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं ना, एफर्ट करते हैं हम, तो Hmm. फिर हमें पता होता है गंदा नहीं खाना। Right. No, I completely agree to that. एंड एज अ वुमेन, इफ यू अगर आप नए घर में आते हो, एंड उस घर में अगर बहुत ज्यादा ऑयल यूज होता है या बहुत ज्यादा हैवी खाना बनता है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू टेक दैट चार्ज, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसे कट डाउन कराना शुरू करो और धीरे धीरे करके बंद करो। बिकॉज अगर आपको आदत नहीं है वैसा खाने की, क्योंकि मेरे पास अभी एक क्लाइंट आ रही है आप पोस्ट वेडिंग, तो शी सेड शी हैज स्टॉप्ड ईटिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम दिस न्यू हाउस। Hmm. रोटी सब्जी उसने बंद कर दी हुई है, कहती मैं चीला बना लेती हूँ, एक सैंडविच बना लेती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ। आई आस्क्ड व्हाट इज द रीजन, कहती यहाँ पे कुक बहुत ज्यादा ऑयल डालता है, एंड बार बार कहने पे भी नहीं वो हटते, तो फिर मुझे लगा मैं ना ही खाऊं तो बेटर है। Right. सो फर्स्ट लर्न हाउ टू कुक, सो Hmm. इफ यू हैव द टाइम थोड़ा सा अपने लिए सॉटे कर लो, ताकि एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आए। Hmm. So it's learning, cooking is very important, and be Hmm. a boy or a girl, because it's not a कि आप गर्ल हो तो सीखना जरूरी है, या बॉय हो तो नहीं सीखोगे। इट्स अ स्किल एंड इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग, बिकॉज बहुत बारी होता है आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपको पता तो होना चाहिए ये खाना कैसे बनाना है, एंड इफ यू आर ऑन अ हेल्दी डाइट यू कैन ऑलवेज ईट एंड मेक इट फॉर योरसेल्फ। Right. I think important is to, be in charge of your own body, Yes, your yes, life, you should. because pressure में कई बार ऐसा होता है after wedding, girls specifically tend to like ऐसे दिखाने के लिए. खा लो, थोड़ा सा खा लो प्लीज, है ना, नई नई शादी हुई है तो वो बहुत फोर्सफुल हम्म. ईटिंग हो जाती है। फर्स्ट लर्न टू से नो, पोलाइटली, काइंडली। yes, that is very important। Right. ठीक है ना? Amazing, great.
I think it was a very insightful conversation, and these are the tips that are so useful and so handy कि हर कोई use कर सकता है इन्हें. Amazing. Thank you so much, Thank you. Simran. Thank you, Anjali. Thank you. Nice Thank you. talking to you. Yeah. Same here.